ناظرین آپ کو بتائیں کہ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں منعقد تقریب میں قائم مقام صدر چیئرپرسن سینٹ صادق سنجرانی نے نو منتخب وزیر اعظم سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے کے بعد تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی علالت اور مختصر رخصت کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں قائم مقام صدر اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے نو منتخب وزیر اعظم سے حلف لیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تقریب حلف برداری میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی شرکت کی اور سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ صدر نون لیگ شہباز شریف ملک کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ قومی اسمبلی میں شہباز شریف کو متحدہ اپوزیشن کی جانب سے 174 ووٹ ملے۔ پہلے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی خط کے حوالے سے پارلیمان کی سیکورٹی کمیٹی میں ان کیمرہ اجلاس بلانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کو خط پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ سیکورٹی کمیٹی میں پاک افواج کے سربراہان ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل ہوں گے۔ دھمکی آمیز خط میں رتی برابر بھی ملوث نکلے تو استعفیٰ دے دوں گا۔ شہباز شریف نے نئی حکومت کی خارجہ پالیسی کے خود دخال بھی واضح کر دیے۔ خطاب میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات رکھیں گے، باہمی تعلقات اور تجارت کو آگے بڑھائیں گے۔ یورپی یونین اور برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ سعودی عرب کی دوستی اور امداد کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ متحدہ عرب امارات پاکستان کے ہمدرد ممالک میں سے ایک ہے۔ تمام خلیجی اور مشرق وسطی ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رجب طیب اردوان کی سربراہی میں ترکی نے جو ترقی کی وہ بے مثال ہے۔ پاکستان کو افغانستان کے لیے ہر محاذ پر بات کرنا ہوگی۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اجتماعی استعفوں کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کے انتخاب کا بائیکاٹ تمام ارکان اسمبلی ایوان میں آئے ووٹنگ سے پہلے ہی چل دیے۔ شاہ محمود قریشی کا اسمبلی میں آخری جذباتی خطاب کہا۔ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بلاول بھٹو کا وزیر خارجہ بننا سجتا نہیں۔ ایک راستہ خودداری کا، دوسرا غلامی کا ہے۔ قوم کے سامنے دو راستے ہیں، ایک اختیار کرنا ہوگا۔ کون نہیں جانتا کہ شہباز شریف کو مسلط کیا جا رہا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں یہ جماعتیں کبھی ایک نہیں ہوئی۔ لکھ لیں، ان جماعتوں کا اتحاد کبھی دیر پا نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف نے عوام میں سیاسی شعور اجاگر کیا۔ آج پاکستان کو اپنی بہادر افواج کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وائٹ ہاؤس میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کا تذکرہ۔ کیا جو بائیڈن نو منتخب پاکستانی وزیر اعظم کو فون کریں گے؟ صحافی نے سوال کیا، جس کے جواب میں ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے کہا کہ ہم کسی ایک پارٹی کو دوسری پارٹی پر ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ ہم قانون کی عملداری کے اصول اور مساواتی انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ اپنے طویل المدتی تعلقات کی قدر کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر فوری عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بدھ کو پشاور میں نماز عشاء کے بعد جلسہ کروں گا۔ پاکستان غیر ملکی طاقتوں کی کٹ پتلی ریاست نہیں، آگے بڑھنے کا واحد راستہ فوری انتخابات ہیں۔ شفاف الیکشن کے ذریعے عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ کس کو اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اب کچھ کورونا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا سے آج ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ اموات کی تعداد 30,362 ہو گئی۔ کورونا سے متاثرہ 269 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 62 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 21,437 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.28% رہی۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن اس بریک کے بعد اور بریک سے پہلے ایک نظر نیوز اپڈیٹس پر۔
पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्क की तारीख के कामयाब तरीन सिपह सालारों में शुमार किया जाता है। पाक फौज जैसे शानदार इदारे के तंजीमी मामलात हों या सरहदों की निगहबानी, पाकिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करने का मिशन। जनरल कमर जावेद बाजवा हमेशा सफ़े अव्वल में नजर आए। नवंबर 2016 में पाक फौज की कमान संभालने के बाद से अब तक जनरल कमर जावेद बाजवा के बेमिसाल दौर पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। Will now hand over the Army command stick to Chief of Army Staff Designate General Qamar Javed Bajwa. पाकिस्तान की सरहदों के ज़ामन, मुल्क में इस्तेहकाम की अलामत, पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, फख्र पाकिस्तान। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2016 को पाक फौज के सरबराह बने। उनकी मजबूत और वाज़ेह दिफाई पॉलिसियों, अमन की ख्वाहिश और मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के अज़्म ने चंद ही माह में उन्हें मुल्क की पसंदीदा शख्सियत बना दिया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुल्क को दरपेश हर मुश्किल का खंदा पेशानी से हल निकालने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बेमिसाल इक़दामात से इंतहाई मुख्तसर अरसे में कौम के दिल में घर कर लिया। ओहदा संभालते ही जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान को दहशत गर्दी से पाक करने का बेड़ा उठाया। तंजीमों और शरपसंदों के स्लीपर सेल्स के खिलाफ शानदार कामयाबियां हासिल की। अमन के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नजर इंतहाई तफसील से बयान किया। जनरल कमर जावेद बाजवा के बयानी को खूब पजीराई मिली। बरतानिया के इंतहाई मोतबर रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने जनरल कमर जावेद बाजवा के बयानी को पांचवा डॉक्ट्राइन का नाम दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के फौजी ताल्लुकात उरूज पर पहुंचे। अमेरिका ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज के किरदार की भरपूर तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में पाक फौज ने अफगानिस्तान में दहाइयों से जारी जंग बंदी की राह अफवाज को पुरअमन इनकला का रास्ता फराहम किया। दुनिया पाकिस्तान के रज़ाकराना किरदार की मोतरफ दिखाई दी। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मिसाली रहे। मुल्क में आम इंतखाबात हुए। दो सिविल हुकूमतों के माबैन पुरअमन इक़्तिदार इंतकाल हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में पाक फौज हर मरहले पर कौम के शाना बशाना रही। सियासी इंतशार और कोरोना की वबा के बावजूद मुल्क में इस्तेहकाम रहा। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में पाकिस्तान और चीन की दोस्ती भी नई बुलंदियों पर पहुंची। सी पैक में हैरत अंगेज तेजी आई। मंसूबे की बदौलत तरक्याती कामों ने लाखों अफराद की जिंदगियों पर मुस्बत असरात डाले। वाज़ेह पॉलिसियों ने चीन को भी सरबराह पाक फौज का मद्दाह बना दिया। कई मौके पर चीनी वजारत खारजा ने खुलकर जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफ की। 2018 में चीनी सदर ने सरबराह पाक फौज से बाज़ाब्ता मुलाकात भी की। पाक फौज के सरबराह की हैसियत से इनका दौर पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से ताजिकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पहले नायब वजीर दिफा चीफ ऑफ जनरल ने मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सलामती की खुसूसी सूरत हाल और इस पर तबादला ख्याल किया गया। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा और दोनों मुल्कों की अफवाज की मुश्तरका मशकों और वफूद के तबादले की ख्वाहिश का इजहार किया। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल खैसिनोफ माराच रेखिमोश को मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। साबिक हुकूमत का कौमी खजाने में 22 अरब डॉलर छोड़कर जाने का दावा झूठा निकला। हकाइक साबिक मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के ट्वीट के बरक्स हैं। कौमी खजाने में 1 अप्रैल तक सिर्फ 11.3 बिलियन डॉलर्स के मजमूई ज़खायर थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1 साल के लिए 2 बिलियन डॉलर्स का कर्जा दिया और चीन ने भी अपने 2 बिलियन डॉलर्स के कर्ज की अदायगी की मुद्दत में मजीद 1 साल की तोसी की, वो भी इसमें शामिल है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार ने भी 11.3 बिलियन डॉलर्स की तस्दीक की है। शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा था कि खान खजाने में 22 अरब डॉलर से छोड़कर गया और नए वज़ीर आज़म ने आते ही खजाना लूटना शुरू कर दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ की लेटर गेट स्कैंडल की तहकीकात कराने की पेशकश को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि ये खुद को एनआरओ देने की भूंडी कोशिश है। लेटर गेट की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए जिसकी सरबराही ऐसे शख्स के पास हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके।
डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा कि मेरी दी गई रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया गया। कासिम सूरी का मुबैना अमरीकी खत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भेजने का ऐलान। कौमी असम्बली इजलास में ड्रामे मोड़ भी आया। अयाज सादिक सदारत कर रहे थे, अचानक डिप्टी स्पीकर आ गए। अयाज सादिक ने बिलावल भुट्टो को खिताब की दावत दी तो कासिम सूरी ने कुर्सी पर बैठते ही इजलास मुलतवी कर दिया और वापस चले गए। इजलास मुलतवी होने पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी बात में मुशावरत करते रहे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल नहीं दे सकता। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने भी ओहदा छोड़ दिया। दोनों ने इस्तीफा मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भेज दिया। गवर्नर शाह फरमान 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज़ इस्तीफे का ऐलान किया था। डॉक्टर सानिया नश्तर ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। डॉक्टर सानिया नश्तर मुआवने खुसूसी एहसास प्रोग्राम थी। बहैसियत मुआवने खुसूसी एहसास प्रोग्राम से वो पहले भी सुबकदोश हो गई थीं। अब उन्होंने खुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सनशिप से इस्तीफ़ा दिया है। सानिया नश्तर ने बयान में कहा कि इमरान खान का शुक्रिया जिन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया। और अब आम दीगर खबरें। कराची तैयार हो जाओ, खान आ रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा, इतवार 17 अप्रैल मज़ार कायद पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान देखेगा। कराची अपने लीडर इमरान खान के साथ एक खुददार खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए खड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी पेश। अदालत ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर कर दिया। डिप्टी स्पीकर के ऑफिस और मराआत मुहैया करने का हुक्म दे दिया। पंजाब में नई हुकूमत साजी के लिए नून लीग और इत्तेहादियों में मुशावरत का सिलसिला जारी। पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को दिए जाने का इम्कान है। जनूबी पंजाब से साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद का नाम गवर्नरशिप के लिए ज़ेर गौर है। मखदूम अहमद महमूद जहांगीर तरीन के करीबी अजीज भी हैं। उनके शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तमाम सूबों के लिए हल्का बंदी कमेटियों की तश्कील 16 अप्रैल तक कर दी जाएगी। 20 से 24 अप्रैल हल्का बंदी कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 3 अगस्त 2022 को शाया की जाएगी। FIA जोन 1 डॉक्टर रिजवान ने अपने कार खास इंस्पेक्टर शाहिद अली को लाहौर एयरपोर्ट पर तैनात करा दिया। ऑर्डर्स तहरीक अदम एतमाद से 1 रोज पहले जारी किए गए। इंस्पेक्टर शाहिद अली ऑपरेशन के खिलाफ शुगर स्कैंडल और दीगर अहम मुकदमात में डॉक्टर रिजवान की टीम का हिस्सा थे। मंडी बहाउद्दीन में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर कारकुनों ने जश्न मनाया। मंडी बहाउद्दीन में लीगी कारकुनों और यूथ के नौजवानों ने मियाँ शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर राना रमीस और जेल चौक में जश्न मनाया। मियाँ आसिफ शब्बीर, चौधरी खलील अहमद और राना रमीस की क़यादत में मोटरसाइकिल रैलियाँ निकाली गईं। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और आतिशबाजी का मुजाहरा किया। शेल पाकिस्तान की जानिब से 2 अदद USVS जीतने वाले विनर्स का ऐलान कर दिया गया। शेल पाकिस्तान ने शेल हेल्पर्स के कस्टमर्स के लिए हालिया प्रमोशन के दौरान 2 फातिहीन का भी ऐलान किया, जिन्हें गाड़ियां तोहफे में दी गई। और इस हवाले से शेल हाउस में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जहां पर शेल पाकिस्तान के नुमाइंदों ने पेशावर के कुर्बान अली और कराची के शफीउल्लाह शफी को SUV गाड़ी बतौर इनाम पेश की, जबकि दीगर जीतने वालों में भी इनामात तकसीम किए गए। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले कुर्बान अली ने गाड़ी जीतने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि मैं इस ज़बरदस्त इक़दाम पर शेल का इंतहाई ममनून हूँ। कराची के शफीउल्लाह शेख ने गाड़ी जीतने को ख्वाब की ताबीर करार दिया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ठट्ठा मकली और इसके गिरदोनवाह में बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो गया, जिससे रोज़ादारों को मुश्किलात का सामना है। मजीद इसी हवाले से बता रही हैं हमारी नुमाइंदा ताज़ा गुल। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के हेड क्वार्टर पर मकली पर, और माह रमज़ान के आमद के साथ जो है ठट्टा मकली और उसके गर्दना में जो है लोड शेडिंग के दौराना में बेपनाह इजाफा हो गया। शहरी और अफ्तार के वक्त भी बिजली आवाम के को दस्तियाब नहीं है, और 6 घंटे लोड शेडिंग जो है बढ़ाकर जो है 14 से 15 घंटे कर दिए। तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, शहरी मौजूद है उनसे मालूम करते हैं। सर बताएं, कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? पूरी रात, मेरे ख्याल में 11 बजे के बाद पूरी रात लाइट नहीं थी। अगर ऐसा तरीका रहा
تو پھر روزے دار جو ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم یہ جو ماہ رمضان کا ہے اس میں لوڈ شیڈنگ نہ کریں. ان کے یہی کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کے دوران میں اضافے جسے جو ہے نہ صرف روزے داروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ پینے کا پانی کا بھی بحران پیدا ہو گیا. اس کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہے. انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. جی خبر شامل کریں گے چونیا سے. تو آپ کو بتائیں کہ چونیا کے علاقے مولا پور کے باغات کے پیلے اور رسیلے لوکاٹ اپنے منفرد ذائقے کے اعتبار سے مشہور ہیں. کھٹے میٹھے لوکاٹ سبز پتوں میں لہلہانے کا نظارہ دل فریب ہوتا ہے. چونیا کے لوکاٹ پک کر تیار ہو چکے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. مہر وقار انور کی یہ رپورٹ. اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو، پاکستانیوں کی آواز.